Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics Nothing Else. So, students, today we are going to discuss further questions of chapter relation and function. The question you can look on the screen. The relation f is defined by fx is function given by x square. Its value is x square when x lies between 0 and 3, including 0 and 3. Means close interval 0 3. Fx is 3x when x lies between 3 and 10, including 3 and 10. Close interval 3 10. Gx is another function and it is defined as x square. X lies between 0 and 2, including 0 and 2, and its value is 3x when x lies between 2 and 10, including 2 and 10. That means x belongs to close interval 2 10. So the relation G is defined by show that f is a function. We have to show that f is a function and G is not a function. We have to show that. So you can look at your screen. Given function is fx equal to x square 0. X is less than greater than equal to 0 and less than equal to 3, and 3x x lies between 3 and 10, x greater than equal to 3 and x less than equal to 3. The relation f is defined as it can be observed that x lies between x is greater than equal to 0 and less than 3 for fx is equal to x square. So for fx and x lies between 3 and 10 when fx equal to 3x. So at x equal to 3 we will find fx value of fx. So value of fx is actually 3x square 3 square, that is 9, or fx equal to 3x, that is 3 into 3. So in both the cases we can look that at x equal to 3 fx is equal to 9. Therefore if x belongs to in close interval 0 10, the images of fx are unit. The images of fx is 9. So on the basis of this we can say that given relation is a function. On the other side, let us take gx equal to x square. X lies between 0 and 2, close interval 0 2, and its value is 3x when x lies it is between 2 and 10, close interval 2 and 10. So it can be observed that for value of x equal to 2, the value of gx is, in one case it is 2 square, that is 4, and in another case 3x. We can find out 3 into 2, that is 6. So two different value we can find. That is why we know that only one image can be possible in function, but here there are two different images of same values. That is why we can say that this relation is not a function. Now switch into next question. We have a question fx equal to x square. We have to find out f1.1 minus f1 and 1.1 upon 1.1 minus 1. So fx equal to x square we can find easily. We can put the value of f1.1 means x 1.1 square minus 1 square divided by 1.1 minus 1. After solving we can find 2.1. So this would be the answer. Next question number 3, you have to find out domain of function, and function is given fx equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 2. So given function you can look at the screen. Fx equal to this one, x square plus 2x plus 1 divided by, we can factorize x square minus 8x plus 12 in such a way that x minus 6 and x minus 2 will be the factor. It can be seen that function f is defined for all real numbers except x equal to 6 and 2. If we will take the value of x equal to 6, it will be indeterminate, not defined. It will be 0, totally 0. So x square plus 2x plus 1 divided by 0. Hence the domain of f is all real numbers except the value of x is 2 and 6. So this would be the relation domain of given function. Now next question, we have to find out domain and range of real function fx equal to x square x minus 1. So simply how we can find domain and range? It is given the real function. It is real function fx equal to under root x minus 1. So it can be seen that it will be, its value will be greater than equal to 0, x minus 1 greater than equal to 0. That is fx equal to is defined for x greater than equal to 1. x जो है वो डिफाइन होगा वो x ग्रेटर देन 1 पे. देयरफॉर द डोमेन ऑफ एफ, यदि डोमेन ऑफ एफ की बात की जाए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे जो कि
1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल टू होगा। इसीलिए डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी होगा, 1 to इन्फिनिटी। एज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज यदि अंडर रूट इसमें चढ़ाते हैं x-1 तो ये 0। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ की बात किया जाए, रेंज का बात किया जाए फंक्शन का, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो रेंज होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और या 0 से बड़े जितने भी होंगे वो रेंज होंगे। रेंज ऑफ एफ को डिफाइन किया जाए तो क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी इसका जो होगा वो रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है ऑफ रियल फंक्शन एन एफ एक्स जो दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x-1 मोड ऑफ x-1। तो गिवन रियल फंक्शन इज गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x-1। डोमेन ऑफ एफ की बात किया जाए x-1 आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिफाइन होगा हर एक रियल नंबर्स में। तो डोमेन ऑफ एफ यदि बोला जाए तो ये रियल नंबर होंगे, सेट ऑफ ऑल ये जो डोमेन होगा वो रियल नंबर्स होंगे। एक्स रियल नंबर में बिलोंग करता है, हम देख सकते हैं रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो x-1 भी जो होगा वो सारे रियल नंबर्स होंगे। हेंस रेंज ऑफ एफ की बात किया जाए तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जो होंगे, सिंस ये भी रियल नंबर्स होंगे तो जितने भी सेट ऑफ, सिंस ये मोड में जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसका रेंज का यदि बात किया जाए तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे वो जो होंगे इसका रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर एन एक्स बिलोंग्स टू आर बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। तो डिटरमाइन करना है रेंज ऑफ एफ, गिवन फंक्शन ये है। आप डिफरेंट वैल्यू इसका देख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो ऑब्वियस ये भी 0 हो जाएगा 0। एक्स का वैल्यू 0.5 लिया जाए प्लस माइनस तो नेक्स्ट 1/5 होगा। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलेंगे और भी डिफरेंट मिलेंगे। तो रेंज ऑफ एफ की यदि बात किया जाए तो जितना भी सेकेंड एलिमेंट है, रेंज ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, जितना भी सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज हो जाएंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल दिस एलिमेंट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। जितने भी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है और लेकिन लेस देन 1 से छोटे हैं। तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, तो रेंज ऑफ एफ जो होगा वो क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट देखते हैं। एक फंक्शन डिफाइन है जी रियल टू रियल भी डिफाइन रिस्पेक्टिवली, एफ एक्स का वैल्यू x+1 है और जी एक्स का वैल्यू 2x-1 है। आप लोगों को निकालना है एफ प्लस जी कंपोजिशंस, एफ प्लस जी एडिशन, फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं। फंक्शन डिफाइन है, आप देख सकते हैं एफ एक्स का वैल्यू x+1, जी एक्स का वैल्यू 2x-1। तो एफ प्लस जी एक्स निकालना चाहेंगे तो अभी हम लोग जानते हैं सेपरेट हो जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, रूल्स आप पढ़ चुके हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू x+1 प्लस जी एक्स 2x-1 है। सॉल्व करेंगे 3x - 2 आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ। एफ प्लस जी एक्स निकालेंगे तो ऑब्वियस 3x - 2 है। एफ माइनस जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का निकालना पड़ेगा एंड दैट इज वाई रिजल्ट विल बी -x+4 आएगा। एफ माइनस जी एक्स का वैल्यू -x+4। इन द सेम में एफ बाई जी और एक्स निकाल सकते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। एफ बाई जी एंड एक्स रहे तो वो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो जाते हैं। वी नो दैट वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग्स टू आर। सॉल्व करने पे एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू x+1, जी एक्स 2x-3। आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू विल बी x+1 डिवाइडेड बाई 2x-3, एक्स नॉट इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1 1 2 3 0, -1 -1, -3। एक फंक्शन है जो कि इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है और एफ एक्स का जो डिफाइन किया हुआ है वो एक्स प्लस बी है। फॉर सम इंटीजर ए बी के लिए तो डिटरमाइन करना है ए कॉमा बी। फंक्शन दिए हुए हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और एफ एक्स को डिफाइन किया गया है एक्स प्लस बी। एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स प्लस बी है, तो 1 1 बिलोंग करता है एफ से, तो एफ वन का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे ए इंटू 1 + बी 1, तो ये इसका वैल्यू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आएगा। 0 - 1 बिलोंग करता है एफ से, तो एफ 0 यदि निकालेंगे -1, इसको पुट करेंगे तो बी का वैल्यू -1, सब्सटीट्यूट करेंगे बी का वैल्यू -1 इन ए प्लस बी में। हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 आएगा, दस द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 2 एंड -1, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन किया गया है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एन और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ये है। तो ये सही है या नहीं ये देखना है।
जहाँ ए जो है बिलोंग करता है रियल नंबर में और स्मॉल ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में और ए भी बिलोंग करता है रियल नंबर में, इम्प्लाइज बी ए भी जो है रियल नंबर में बिलोंग करेगा। थर्ड वाला ये है, आप देख सकते हैं, इसको भी प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है आंसर को। तो ये डिफाइन किया हुआ है आर ए बी ऑर्डर पेयर रहेंगे और ए बी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा और ए इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं दो जो है नेचुरल नंबर है, हाउएवर दो जो है 2 स्क्वायर के इक्वल टू नहीं है। देयरफॉर स्टेटमेंट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ये सही नहीं हो सकता। आप सेकेंड की ओर देखते हैं, एक लेते हैं एक और ऑर्डर पेयर 9 3 लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन 9 3 बिलोंग कर रहा है एन से, लेकिन 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर ये तो है, बट 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, ऐसा 3 नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर ये नहीं है। 9 स्क्वायर इक्वल टू तो 81 हुआ, देयरफॉर 3 9 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेंगे। देयरफॉर स्टेटमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये सही नहीं है। सिमिलरली हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं थर्ड वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कि एक ए सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं एंड बी अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 5 9 11 15 16 है एंड एफ फंक्शन डिफाइन किया गया ऑर्डर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है एक्चुअली, जिसमें 1 5 एलिमेंट है 2 9 3 1 4 5 2 11। ये बोला जा रहा है कि एफ ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये देखना है सही है कि नहीं। एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई करो आंसर को। एक फंक्शन ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है एलिमेंट्स हैं और ये बी में है एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं। दिया हुआ है कि 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये एफ का है। तो रिलेशन फ्रॉम नन एम्प्टी सेट ए टू नन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है। तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का एफ जो है वो सबसेट है, दैट इज वाई ये जो है रिलेशन है ए टू बी पे। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 करस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 है जिसका अलग अलग डिफरेंट इमेजेस 9 और 11 मिल रहा है, तो ऐसा जो है फंक्शन में नहीं हो सकता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एफ जो है सबसेट है जेड क्रॉस जेड का और डिफाइन किया गया है ए बी एन ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो पूछा जा रहा है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई करो इसे। तो द रिलेशन एफ इज डिफाइन, एफ जो है डिफाइन किया हुआ है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन जब हर एक एलिमेंट सेट ए का जो है उसका यूनिक इमेज सेट बी में बनना चाहिए। 2 6 -2 -6 को देखिए वो बिलोंग करता है इंटीजर में, लेकिन 2 क्रॉस 6 2 + 6 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई -6 एंड -2 + -6 ये बिलोंग कर रहा है एफ में। 12 8 12 -8 बिलोंग कर रहा है एफ में। इट कैन बी सीन दैट सेम फर्स्ट एलिमेंट 12 जो है वो 2 डिफरेंट इमेज दे रहा है 8 और -8, आप देख सकते हैं 12 भी है प्री इमेज 12 भी है प्री इमेज, बट इसका डिफरेंट एलिमेंट्स 8 और -8 मिल रहा है, दैट इज वाई ये फंक्शन तो नहीं हो सकता है। फंक्शन होने के लिए एक यूनिक एलिमेंट्स यूनिक इमेज होने चाहिए एज यू नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13 और फंक्शन डिफाइन किया गया है ए टू नेचुरल नंबर एंड डिफाइन बाई एफ एन जो हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन होगा। तो रेंज ऑफ एफ आपको फाइंड आउट करने हैं। एक ए जो है सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13, डिफाइन किया गया है ए टू एन, डिफाइन ऐसे है कि एफ एन जो है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है। प्राइम फैक्टर ऑफ 9 देखते हैं तो 3 उसका होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 देखेंगे 2 5 होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 11 देखेंगे 11, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 13 13 होगा। F9 निकालते हैं, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 तो वो 3 होगा। F10 निकालेंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 5 होगा। F11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 11, F12 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 3, F13 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 13। द रेंज ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल एफ एन होगा, जहाँ एन बिलोंग करेगा ए से। रेंज ऑफ एफ की बात किया जाए तो 3 5 11 30 ये सब जो हो जाएंगे वो रेंज में आएंगे। So this is for this class students. I hope you understood all the questions in a proper way, and this is the last lecture for relation and function chapter. Next class we will discuss it's about lab manual work of relation and function. It is very helpful in EMRS PGT. As mentioned in syllabus, you can look syllabus and you can relate with your syllabus and study. Practice more and more questions. This is the suggestion from my side. I hope you will practice all the questions. So thank you students, teachers, thank you everyone.